Good morning, students. Welcome to the explanation video for your physics assignment number 1, chapter number 3, motion in a straight line. Okay, the first question actually asked was, what will be the stopping distance if the velocity of a vehicle be doubled for the same retardation? Okay, so what actually we have to compare the two stopping distances. One, when the initial velocity is some value, and second, when the initial velocity is doubled. So what we'll do, let us solve it. Let S1 be the stopping distance. Okay. Okay. So it is stopping from some velocity. It has some initial velocity. We'll write it V0. Okay. It has a initial velocity of V0 and acceleration of say minus a. Oh, okay. So S1 is the stopping distance, V0 is the initial velocity, and acceleration here we'll put it as minus a because it is stopping. Okay, so decelerating, this is the deceleration of minus a. What will be the final velocity? Will be 0. Okay, so using this formula, v square is equal to v naught square plus 2as, we can put it here as 0 is equal to v naught square minus 2a s1. Okay, so S1 here will be v naught square upon 2a, है ना. कैसे आया? 2a S1 को इधर ले आया 0 के साथ, और 2a डिवाइडेड है तो यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे डिवाइड हो गया. दिस इज द 1. ओके, राइट इट एज 1. सेकेंड केस अगेन, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 2 times the first case. So 2v naught. Okay, acceleration will be minus a, and final velocity is 0, and distance traveled here I'll take it as s2. So again from that formula, this formula, same formula, v square is equal to 2v naught square plus 2 into minus a into s2. So this is 0, I'll put it here as 0. 2a s2 is equal to 4v naught square, s2 is equal to 4v naught square upon 2a. Okay, so now this is 2, or what if I can write here this v naught upon 2a, v naught square upon 2a is s1. This implies S2 is equal to 4 S1. So what happens to the stopping distance? When the initial velocity is doubled, the stopping distance becomes 4 times the first stopping distance. This is the answer. Okay. So when the stopping distance is, when the initial velocity is doubled, the stopping distance becomes 4 times. So let's go to the other question. Second question in your assignment is it possible that the brakes of a car are so perfect that the car stops instantaneously? If not, why? You have to understand this question. The moment you put your foot in the brakes, at the same instant the vehicle should stop. क्या ये possible है कि जैसे ही मैंने पैर रखा ब्रेक्स में और
at that instant or at that position only the vehicle will stop. Is it possible? For that, अगर वो ऐसा होना है तो for that what will happen is first your final velocity is 0 है ना, अगर उस position में क्या है, your final velocity is equal to 0 and the time taken to reach that final velocity is very very close to 0, or what we can say delta t tends to 0 नहीं, delta t is equal to 0, the time elapsed is 0 हो, या इसको मैं सिर्फ t से शो करता हूँ है ना, c t से शो करता हूँ. ओके, सो what will happen, we have v is equal to v naught plus a t. Let us find the acceleration. ओके, v यहाँ पे क्या है, 0 है, v naught समथिंग है प्लस a t. ओके, a t को उधर ले आया, माइनस a t इज इक्वल टू v naught और माइनस a और सिर्फ a इज इक्वल टू माइनस v naught अपॉन t. ओके, नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दिस t इज इक्वल टू 0. अगर t इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, किसी के साथ 0 से किसी को डिवाइड करेंगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड, और व्हाट वी कैन से इट्स माइनस ऑफ इनफाइनाइट. एक्सेलरेशन और यहाँ इन दिस केस इट इज़ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स हमने अभी एक VT ग्राफ में अगर ये V है और ये T है ग्राफ है ना, तो एट दिस इंस्टेंट ओनली द ग्राफ विल गो लाइक दिस टू इन्फिनिटी. और मैं अगर थोड़ा सा बोलता हूँ इस एट दिस इंस्टेंट से t इज इक्वल टू 1, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, विच एक्चुअली इज नॉट पॉसिबल है ना. ग्राफ विल बी, एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, इसका स्लोप 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में, it is not possible. So this answer here is, it is not possible, and the reason is that the acceleration cannot be infinite. Okay, so let's go to the third question. The third question says, a boatman covers the distance between places, in first case in 8 hours, when it is moving along the direction of flow of river. Okay, and second case in 12 hours along the direction of opposite to the direction of flow of river. So the question here is, how much time will he take to travel the same distance in still water? Okay, so let us draw a diagram. And there are two places here and here. Let me take it as A and this is B, and it's a river. What is it? It's a river. Okay, so in the first case, the boat is traveling in this direction, say left to right, and the river actually is flowing in this direction, say left to right, and it has certain velocity. Okay, it has certain velocity. Okay, I will take this velocity as v naught है ना, है, that is called stream velocity. इसको क्या बोलेंगे हम, stream velocity. So stream velocity is equal to v naught. Okay, now I will also take into consideration, अगर ये stream velocity नहीं होती, if there was no stream velocity, the river was at rest or still water, so this boat would be moving at a certain speed. Okay, I'll take it as v. So speed of boat in still water, speed of boat in still, I'll take it as v. Now this distance between these two places is not changing. Okay, and from A to B the distance is same. I'll take it as s. Okay, so distance between A and B is s. Okay, now what we need to find out is, now there are two situations given. First situation is
कि व्हेन द बोटमैन इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम यानी अलॉन्ग द रिवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर या अलॉन्ग द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। तो ये डाउन स्ट्रीम है। व्हेन द बोटमैन इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन इज 8 hours। यस, व्हेन द बोटमैन इज गोइंग डाउन स्ट्रीम यानी ए से बी जब जा रहा है तो इसको कितना समय लग रहा है? 8 hours। नेचुरली क्यों 8 hours लगेगा? क्योंकि एक वेलोसिटी है बोट की v, उसको एड कर रहा है ये स्ट्रीम वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको आपका जो टोटल स्पीड है वो क्या मिलेगा आपको? v + v0। ओके, सो लेट अस टेक दैट केस। velocity of boat downstream, okay, I'll write velocity of boat downstream। इसको आप ये भी लिख सकते हैं along the flow of river। yeah, downstream को आप क्या लिख सकते हैं? along the flow of river, but I have studied like this, so I am solving it like this। so velocity of boat downstream is v, means the velocity of boat in still water plus velocity of stream। okay, so this is v plus v0, and what we are trying to do, what is the value given? it's a average velocity। तो हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है speed is equal to distance upon time। distance कितना है? s। टाइम कितना लगा? 8 hours। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ this speed is equal to v plus v0 is equal to distance is s upon time is 8 hours। so this is first equation। similarly velocity of boat upstream, velocity of boat upstream, I'll write it, velocity of boat upstream। now in this case the boat is here और यहाँ से वो वापस A पे आ रहा है, तो बोट की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर इज v। ओके, क्या है? v है, बट जो रिवर स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी क्या है? v0 इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? नेचुरली अगर ये इधर मूव कर रहा है तो v की वैल्यू v0 से ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी v माइनस v0, और स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। इट विल बी s अपॉन 12। ओके, s upon 12। now add this two equation, add 1 and 2, I'll write it here, add 1 and 2, what will happen is this will become 2v and this will cancel out। okay, so 2 times v is equal to s by 8 plus s by 12। ये आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 5s upon 48। आई थिंक यस, 5s upon 48। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? टाइम कितना लग रहा है? टाइम इतना लग रहा है। डिस्टेंस कितना है? s है। वेलोसिटी क्या है? 5s upon 48 है। तो टाइम निकालना है ना? तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? s है। वेलोसिटी क्या है? 5s अपॉन 48। तो t इज इक्वल टू 48 अपॉन 5 आवर्स। ओके, s कैंसिल, ये 48 ऊपर चला गया, 5 नीचे आया, 48 अपॉन 5 आवर्स। इट विल बी अराउंड 9.6 आवर्स। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 9.6 hours। So time taken by boat to travel from point A to B in still water is 9.6 hours। चाहे A to B हो या B to A हो, because the stream velocity 0 हो गया तो उतना ही टाइम लगेगा। So 9.6 hours is the answer। Okay, okay, now let's go to the next question। Now to solve this question you need to be first very clear with the rules of differentiation। okay, and differentiation का जो पहला ही formula that will be only applied। so here the question says the position of a particle is given by the equation x is equal to 4t square minus 15t plus 20 meter। find the position velocity
and acceleration of particle at time t is equal to 0. So the position of the particle is given by this equation. X is equal to 4t square minus 15t plus 20. Okay, so suppose in position time graph, okay, I'll put it here. This is only for your understanding. There is a position time graph, okay, and the position of the particle is given by, and it's not a equation of straight line, it's a equation, parabolic equation. So it will be like this, okay. So this is the equation, 4t square minus 15t plus 20, okay. Here it is x and here it is t, okay. तो ऐसा ग्राफ है, उसमें ये दिया जा रहा था. At any point of time, at any instant of time, we can know the position of that particle. कहा ना, इसमें कहीं पे भी अब ड्रॉप करेंगे तो उसका पोजीशन क्या है वो पता चल जाएगा. तो एक्स टी ग्राफ है वो दिया हुआ हमको इस इक्वेशन से, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20. ओके, सो एट टाइम t इक्वल टू 0, सपोज देयर इज अ टाइम t इक्वल टू 0, सो व्हाट इज दिस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके, यानी t इक्वल टू 0. ओके, तो हम क्या करेंगे, फॉर पोजिशन पुट t equal to 0 in this equation, in 1. This is the first equation. Okay, so the position will be x0 is equal to 4 into 0 minus 15 into 0 plus 20. जब ये रख देंगे तो आंसर इज 20 मीटर. सो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी आपको इंटरसेप्ट मिलेगा एट x वाले एक्सिस में या डिस्टेंस वाले एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस में है. एट t इज इक्वल टू 0, इट इज़ एट पोजिशन 20. ओके, नाउ सेकेंड इट सेज एट t इक्वल टू 0 व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ the particle, of velocity of particle. Now you might have gone through the course material. There's a formula for instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Okay, so I'll write instantaneous velocity, in which we have to differentiate this equation with respect to t. So instantaneous velocity v is equal to dx upon dt. Okay, instantaneous velocity at any instant of time, what is the velocity? It is dx upon dt. That means d upon dt of, what is x here, 4t square minus 15t plus 20. अब आया खेल डिफरेंशिएशन का, हमको ईच टर्म को डिफरेंशिएट करना है. ओके, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, आपने फॉर्मूला याद रखेंगे, d upon dx of x to the power n. यही है फॉर्मूला. यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बट x to the power विल बी n into x to the power n minus 1. दिस इज द फॉर्मूला. तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 4t स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर यानी t to the power 2, तो n यानी 2 है, और t to the power 2 minus 1. ओके, ये पहले टर्म का है, हो गया. देन माइनस 15 t का होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dt अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज अ कांस्टेंट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. सो द डिफरेंशिएशन हियर इज 4 2s are 8 t minus 15. This is v. Now we have to find this velocity at the instant of where the time t is equal to 0. Put t is equal to 0 here. At t equal to 0, v is equal to 8 into 0 minus 15. So answer is minus 15 meter per second. Minus का मतलब क्या है? The velocity is in the opposite direction of the displacement of x. At t
instant it is at the opposite direction. So minus 15 meter per second. Now similarly, acceleration, instantaneous acceleration is given by, I'll put it here only. Instantaneous acceleration is given by dv upon dt. Okay, I'll write it. Instantaneous acceleration is equal to dv upon dt, or I'll write a is equal to d upon dt with respect to t. What is velocity here? 8t minus 15. 8t minus 15. ओके, डिफ्रेंशिएट कर देंगे. अगेन ये t टू द पावर 1 है, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 8 माइनस, अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0. सो a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ व्हाट major thing what you will find out is in this there is no t appearing in this. अब t तो अपेयर कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. t इज इक्वल टू 0 भी वो 8 मीटर पर सेकेंड रहेगा, t इक्वल टू 1 भी, 2 भी, t को आप बढ़ाते जाओ लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? उतना ही रहेगा. इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो द आंसर हियर इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, now we'll go to the fifth question. Fifth question says two cars A and B are at positions 100 and 200 meter from the origin at time t equal to 0. They start simultaneously with velocities 10 meters per second and 5 meters per second respectively and move in the same direction. Determine the position and time at which A overtakes B. Okay. तो इसको, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले चित्र बना लेते हैं. तो चित्र बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नाउ देयर इज एन ओरिजिन. सबसे पहले क्या करना चाहिए? ओरिजिन बनाना चाहिए. दिस इज ओरिजिन यानी 0, इसको ओ कर देते हैं, है ना. सपोज अवर मोशन इज ऑन द राइट हैंड डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ये मोशन इधर हो रहा है. ओके, नाउ देयर इज ए कार ए, है ना. तो कार A उसका पोजीशन दिया हुआ है, इट इज़ एट 100 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो मैं उस पर लिख देता हूँ x ऑफ A एट द इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट 0. जब टाइम 0 था उस समय इसका पोजीशन क्या था? xa, और इट हैड ए वेलोसिटी ऑल्सो va. ओके, va कितना था? 10 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, सिमिलरली देयर वाज अनदर कार B विच वाज समवेयर हियर, और आई विल पुट इट हियर. There was a car B and its position from origin, I'll write it xb at time t is equal to 0. ये था 200 मीटर. ओके, 200 मीटर, और इसकी एक वेलोसिटी थी vb और वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. बोथ द कार्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बोथ द कार्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ सिंस va is 10 meters per second and vb is 5 meters per second, naturally there will be a time when va will be very close to vb and at a certain point of time and distance it will overtake it. तो अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक डिस्टेंस कवर करेगा और उसके बाद में वो ओवरटेक कर लेगा. तो सपोज़ उसने एक डिस्टेंस कवर किया, सपोज़ एट टाइम t, एक सर्टेन टाइम पे उसने डिस्टेंस कवर किया. सपोज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसने किया xa एट t, है ना. तो ख़ास बात ये क्या है कि यहाँ पे पॉइंट कार B भी उसी जगह पे रहेगी. एट दैट इंस्टेंट कार B भी वहीं पे रहेगी और उसका जो पोजीशन है वो हम देंगे xb एट t, है ना. यानी xa एट t का पोजीशन, यानी द पोजीशन ऑफ कार A एंड पोजीशन ऑफ कार B विल बी सेम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम t. उसको इक्वेट कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल जाएगा तो हमको पोजीशन भी उस समय का मिल जाएगा. तो हम सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ कार एट इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट, कार A एट टाइम इंस्टेंट t, xa एट टाइम इंस्टेंट t इज गिवन बाय इनिशियल पोजीशन. इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? मैं लिख देता हूँ उसको xa एट
0 प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? va इंटू टाइम t तो निकालना है हमको, है ना। ये कितना हो गया? इसको मैं लिख देता हूँ 100, एक्स ए ज़ीरो क्या है 100 मीटर्स प्लस 10t, ठीक है, ये पहला। सिमिलरली एक्स बी एट टाइम t यानी एक्स बी एट 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ b इंटू t, है ना। एक्स बी कितना है 200 प्लस वेलोसिटी क्या है 5 टाइम t 2, इक्वेट कर दो 1 इज इक्वल टू 2 यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी एट द टाइम, एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, इक्वेट कर देते हैं इसको। तो 100 t प्लस 10t इज इक्वल टू 200 प्लस 5t, 5 इधर आया तो ये हो गया 5t, 100 उधर गया, 100t नहीं है 100 है, तो ये हो जाएगा 100 उधर गया, ये हो गया 100 एंड दैट मीन्स t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, है ना। मीन्स इन 20 सेकेंड्स कार A विल ओवरटेक कार B, okay, in 20 seconds car A will overtake car B, but the question asked is what will be the position of car A और car B, है ना। तो कार A या कार B 20 सेकेंड के बाद में क्या पोजीशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, है ना। तो यानी एक्स ए या 20 लिख देता हूँ यहाँ पे, एट 20 इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन उसका था 100 प्लस वेलोसिटी है 10 इंटू 20 यानी कितना हो गया 200 प्लस 300 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। सो द आंसर इज इट विल ओवरटेक, डिटरमाइन द पोजीशन एंड टाइम, दोनों निकल गया, टाइम निकल गया 20 सेकेंड बाद और पोजीशन एट 300 मीटर पॉइंट, ये कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी। ओके, सो लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, है ना। जितने 8 क्वेश्चन में से सबसे सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 था। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन of the car and second is find the distance traveled in the first 10 seconds. So आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। A car starts from rest, for car starts from rest यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, है ना। It starts from rest and attains a velocity of 108 kilometers per hour यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं 108 इंटू 5/18, आपका जो शॉर्टकट है ये अगर आप कर देंगे 5/18, सो इट्स वेलोसिटी विल बी 30 मीटर्स पर सेकेंड, 30 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, टाइम इज गिवन, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए सेज व्हाट इज एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस v नॉट अपॉन t, ओके, यानी कि 30 माइनस 0 अपॉन 10 एंड दिस इज 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 30 डिवाइड बाय 10, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो अगेन सेकेंड फॉर्मूला इज ए मिल गया अपने को, v भी मालूम है, तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल वाला लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं। दोनों से s ही तो फाइंड करना है, हम सिंपल वाला लगाते हैं, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। सो वी नॉट 0 इंटू टी प्लस हाफ a is 3 into 10 second, 10 square, that is s. s is equal to half 300, 50, answer is 150 meter. So this is the simplest of all
नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्लास में भी आपने इसको सॉल्व किया है सिमिलर क्वेश्चंस. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a ball is dropped from a balloon which is at a height of 100 meter and rising up with a uniform velocity of 15 meters per second. After what time the ball will strike the ground? Take g is equal to 10 meters per second square. So you need to understand the question first. Okay, there is a balloon. Okay, suppose there is a balloon and at that instant when the ball is dropped, it is at the height of h, and h is equal to, here it is given 100 meter. Okay, 100 meter, but at that instant this balloon is rising up with a speed of 15 meters per second. At that instant, this balloon, when the ball is dropped, the balloon itself is rising up at 15 meters per second. Okay. Then, what they are saying, take g. G is equal to 10 meter per second square. Acceleration due to gravity 10 meters per second square. Now, what we need to calculate, we need to calculate the time. It is dropped, the ball is dropped. What time will it take to reach the ground? We need to find t. Okay, तो क्लैरिटी है. एक बॉल है, एक बलून ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकेंड. वहाँ से ड्रॉप किए, वहाँ से ड्रॉप करे कितने, और जिस इंस्टेंट में ड्रॉप किए तब वो बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी थी? 100 मीटर्स थी. हमको ये टाइम पता करना है जब ये बॉल नीचे ज़मीन से टकराएगी. तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. व्हेन नाउ लेट अस फर्स्ट टेक द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं यहाँ पे? डाउन इज पॉजिटिव एंड अप इज नेगेटिव. वे द मोमेंट ऑफ बॉल गोइंग डाउन हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वो ऊपर जाता है तो नेगेटिव. तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट क्या होगी? इट विल बी, किस तरफ जा रही है बलून? ऊपर जा रही है. ऊपर जा रही है तो हम इसका पहले तो साइन ले लेंगे माइनस, नेगेटिव. और क्या है उसकी वेलोसिटी? 15 मीटर्स पर सेकेंड. सो v नॉट 15 मीटर्स पर सेकेंड, है ना. एक्सेलरेशन इज प्लस g, क्योंकि हम इधर नीचे जा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी डायरेक्ट इधर ही है. इट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. h हाइट और s इज 100 मीटर. इतना कुछ दिया है, हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, t. ओके, सो t कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमको t मिल जाए, है ना. तो फॉर्मूला इज हियर, आई विल राइट s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर. या यहाँ पे मैं s को रिप्लेस करता हूँ 100 से, इसको h ही लिख देता हूँ. 100 से इज इक्वल टू माइनस 15t प्लस हाफ इंटू 10 t स्क्वायर. और व्हाट आई कैन राइट हियर, 100 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 15t. सबको इधर ले आते हैं, या इस 100 को इधर ले जाते हैं, तो दैट विल बी 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 100 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 को भी और कैंसिल कर देते हैं, तो ये होगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यू हैव टू रिमेंबर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, है ना. ये सिंपल अगर फैक्टराइजेशन से हो जाता है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मूला, है ना. सी, यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ इट इज ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is x here? It will be minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the formula.
यानी यहाँ पे t कैसे निकलेगा, है ना, माइनस ऑफ b, है ना, यहाँ b, a क्या है, a है 1, b है -3 और c क्या है -20। इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो t निकलेगा, t इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 स्क्वायर, या मैं इसको इधर करता हूँ तो विजिबिलिटी अच्छी होगी। t इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 इंटू 1 इंटू -20 अपॉन 2 इंटू a। ओके, ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 is 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 80 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस रूट 89 बाई 2। ओके, नाउ रूट 89 इट कम्स, इसका सॉल्यूशन है 89, रूट 89 इज 9.43, रूट 89 इज 9.43 अपॉन 2। नाउ 3 माइनस 9.43 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे 3 प्लस 9.43, 12.43 डिवाइडेड बाई 2 एंड द आंसर इज 6 point something, 6.22 seconds. So the ball will take 6.22 seconds to hit the ground. Okay, and this is the answer. So you have to revise fairly well your maths topic from your class 9th and class 10th. Okay, so this brings us to the last question. The last question says, on a foggy day, two drivers spot each other when they are just 80 meters apart. They are traveling at 72 kilometers per hour and 36 kilometers per hour respectively. Both of them applied brakes, retarding their cars at the rate of 5 meters per second square. Determine whether they avoid collision or not. To understand this, two cars are traveling and they are traveling in opposite direction and it's a foggy day. Foggy day यानी पूरे वातावरण में धुंध है, धुआं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इन तो दोनों को जब वो दिखा, एक दूसरे को देख पाए, तब वो कितने दूर थे एक दूसरे से 80 मीटर्स। या हमने बोला देखने के बाद जब वो ब्रेक अप्लाई किए, तो ब्रेक अप्लाई करने के टाइम पे इन लोगों के दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 80 मीटर, है ना, दोनों गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना था, 80 मीटर। जैसे ही उन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, देयर वॉज अ डिसेलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ही गाड़ी सेम वैल्यू से डिसेलरेट हुए, है ना, या रिटार्ड हुए, है ना। ए इज़ माइनस, क्यों, क्योंकि वो गाड़ी रुक रही है ना, इसलिए माइनस, तो -5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का इनका रिटार्डेशन है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर्स है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे, इट विल, दो इट इज़ रिटार्डिंग, इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस। गाड़ी का एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, इसका भी एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, इसका भी एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन आखिरी में ये पूछा है, क्या वो एक दूसरे से टकराने से बच जाएंगे? तो वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? इनका स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस और इस गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस। कैसे? अगर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस और इस गाड़ी के स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, और अगर वो इस 80 मीटर से कम होता है, तो द एक्सीडेंट विल बी अवर्टेड, द कोलिजन विल बी अवर्टेड। लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो देयर विल बी डेफिनेटली अ कोलिजन, है ना। अगर ये दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस 80 मीटर से ज़्यादा होता है तो देयर विल बी कोलिजन। ओके, तो चलिए निकालते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ए का, है ना। फर्स्ट का है ए का, इसका वेलोसिटी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, इसको हम मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 72 × 5/18,
कितना हुआ 4 5 पूरा 20 meters per second 20 meters per second. So let its stopping distance is s1 है ना. What will be its final velocity? Will be 0. Okay, and s1 is stopping distance है. तो v square is equal to v naught या va square minus 2a s1. तो s1 here is v square upon 2a. कितना हो गया ये 20 into 20 upon 2 into 5 5 to the 10 to the 4 40. ये हो गया 40 मीटर. s1 is 40 मीटर. ओके, अब s2 निकाल देते हैं यहाँ पे. v again is 0, s2. ओके, सो अगेन v square is equal to vb square minus 2a s2. ये 0 है तो ये क्या हो गया s2 will be vb square upon 2a vb. ओह, vb तो निकाला ही नहीं. It will be 36 into 5 by 18 to 10 meter per second. तो ये हो गया 10 into 10 on 2 into 5 to the 10 meters. So s2 is 10 meter. So what is s1 plus s2? s1 plus s2 is 40 plus 10 is equal to 50 meters, which is less than 80 meters. So टकराने से पहले ये गाड़ी रुक जाएगी. So the collision will be averted. Okay, I hope I have explained it quite clearly, but even if you have any doubt, you can ping me or call me or message me. Okay, thank you.